Sure, sir. So, on behalf of the Committee on Conservation of India's Flora Chhatr Paryavaran Sansad 2026, I warmly welcome all the delegates to today's expert mentor session. Before we begin, let me just check one thing. Okay. So, it's my privilege and honor to welcome our expert mentor for today's session, that is Dr. Anjana Rajput, ma'am. Ma'am is a senior research officer and head of Habitat Ecology Department, Division, Wildlife Department at the State Forest Research Institute, Jabalpur, Madhya Pradesh. Dr. Rajput holds an MSc in botany with specialization in forest ecology and received her PhD in year 1992 from Dr. Hari Singh Gaur, Central University, Sagar. She was also awarded the Senior Research Fellowship by CSIR New Delhi during 1992 to 94 and has further completed a diploma in environmental studies from IGNOU. Ma'am brings with her more than 30 years of research experience in fields of forestry and wildlife, with particular expertise in wildlife monitoring and conservation, habitat ecology, and environmental impact assessment. She has also been recognized as a functional area expert in ecology and biodiversity by NABID, Quality Council of India, and particularly for river valley and mining sectors. Apart from her research work, Ma'am has supervised research projects, evaluated MPhil and PhD thesis, organized national and international workshops and training programs, and delivered lectures as a guest faculty at various programs. She has also represented and participated in several national and international conferences, including IUFRO Congress in Hania, Crete, the 14th World Forestry Congress in Durban, South Africa, and International Conference on Biodiversity and Conservation in Dubai. With such extensive experience in forest ecology, wildlife conservation, biodiversity, and environmental impact assessment, we are extremely fortunate to have ma'am with us today to guide our delegates on important topic of diversion of forest land for mega projects. Ma'am, we are truly grateful for your valuable time and for agreeing to interact with the young delegates of the Committee of Conservation of India's Flora. And now, without taking any more of your time, I would request you, ma'am, to kindly take over the session and share your valuable insights and experience with all of us. At your kind disposal, ma'am, I now humbly request you to kindly take over the session. The floor is all yours, ma'am. Just there's something, just technical things which are getting sorted out. Just hold on for a few seconds. Good evening, one and all. Due to some technical issues, let's restart this meeting once again. Ma'am is with us now.
You may briefly read out the introduction once again. Sure, sir, sure, sir. On behalf of everyone, on behalf of the Committee of Conservation of India's Flora Chhatra Paryavaran Sansad 2026, I warmly welcome all the delegates to today's expert mentorship session. Before we begin, with your permission, ma'am, shall we begin? Ma'am, am I audible? Yeah, you Yes, are ma'am. audible. It's my privilege and honor to welcome our expert mentor for today's session, Dr. Anjana Rajput, ma'am. Ma'am is a senior research officer and head of Habitat Ecology Division Wildlife Department at the state's Forest Research Institute, Jabalpur, Madhya Pradesh. Ma'am holds an MSc in botany with specialization in forest ecology and received her PhD in 1992 from Dr. Hari Singh Gaur, Central University, Sagar. She was also awarded the Senior Research Fellowship by CSIR New Delhi and has further completed a diploma in environmental studies from IGNOU. Ma'am brings with her more than 30 years of research experience in the fields of forestry and wildlife. She has been recognized as she has also been recognized as a functional area expert in ecology and biodiversity by NABIT, Quality Council of India, particularly for the river valley and mining sectors. Apart from her research work, ma'am has supervised research projects, evaluated MPhil and PhD theses. She has also represented and participated in several national and international conferences, including IUFRO Congress in Hania, Crete, the 14th World Forestry Congress in Durban, South Africa, and International Conference on Biodiversity and Conservation in Dubai. With such extensive experience in forest ecology, wildlife conservation, biodiversity, and environmental impact assessment, we are extremely fortunate to have ma'am with us today and guide our delegates on the important topic of diversion of forest land for mega projects. Ma'am, we are truly grateful for your valuable time and for agreeing to interact with the young delegates of the Committee on Conservation of India's Flora. At your kind disposal, ma'am, I now humbly request you to kindly take over the session. Very good evening to one and all. Namaskar. Am I audible properly? You are audible, ma'am. Please, thank you. Yeah. So it's my pleasure to be here in Chhatra Paryavaran Sansad 2026, and I really appreciate the wonderful ideas and their innovative minds who are created this kind of initiative for the youngsters, and such kind of activity play a very important role for the holistic development of the students, because students are the building blocks of our nation. They're the future of India. And here one quote is remind me by which was by our former president APJ Abdul Kalam, who said, it ignited minds of youth are the most powerful resource on the earth. So as you people are here, and I consider you all the most powerful resource on the earth. And first of all, I would like to thank Mr. Abhimanyu Singh sir, who has invited me here, and for this session of conservation of India's flora under the Chhatra Paryavaran Sansad. And today's topic for discussion is diversion of forest land for mega projects like mining projects, irrigation projects, highways, and all. And our special focus is on can compensatory afforestation replace the forest which we have lost during the diversion. So that is the discussion topic for today's. I would like to share the presentation, like this presentation. So this is the topic for today's discussion.
Is it visible to all? Yes, ma'am. It's Yeah. visible. Okay. So ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? नहीं आ रहा. Next, हाँ. Next slide नहीं आ रहा. हाँ, कहाँ से? Okay, okay. So first we'll start. What is the process of diversion? In very short, the process of diversion of forest for non-forestry purposes in India is governed by the Forest Conservation Act 1980. The act was announced by the government of India in order to check deforestation and to provide for conservation of forests and maintain overall ecological balance. Prior approval is required. It is needed from central government, Ministry of Environment, Forest and Climate Change to use any forest land for non-forest use. The prior approval is known as forest clearance. Either we can call it environmental clearance. So then what we will call consider as a non-forest purpose. So if the land is being used for cultivation of tea, coffee, spices, rubber, palms, oil-bearing plants, horticulture, crops or medicinal plants, and or for other mega projects like mining, any kind of mining, like coal mining and different ore mining, irrigation, dam construction, industries, highways, infrastructure development, etc. In short, procedure for environmental clearance or forest clearance. So there will be the following steps. So very first we consider identification of the location. If the location is falling under the 10-kilometer periphery where any protected area, either any historical monument is falling, so it will not be clear for the forest clearance. Second step is screening. What is the magnitude of the project, whether it is of category A, category B, whatsoever. If further conduct EIA requirement. This is very important study, important stage where the project proponents submit any project and any independent agency will do the EIA study. मैम मैं जस्ट मेक टू रिक्वेस्ट, वन की थोड़ा बाइलिंगुअल अगर रखेंगे तो ये अच्छा और दूसरा मेरा एक आग्रह है कि जैसे प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट आप बोलेंगे ना तो हम लोग तो समझ लेंगे लेकिन बच्चे नहीं समझ पाएंगे. आई एम सॉरी नहीं, नॉट एट ऑल. और ये जैसे एनवायरमेंट इम्पैक्ट क्या है थोड़ा सा. ओके. थैंक यू सॉरी टू डिस्टर्ब. ये थोड़ा सा बिगिनिंग पार्ट जो है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एंड इट्स आल्सो वेरी बोरिंग आल्सो. थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा इंटरेस्टिंग आ जाएगा. तो ये मैं शॉर्ट में बहुत डिफरेंट स्टेप्स है. फिर हमको एनओसी लेना होता है EIA स्टडी के बाद एंड एप्लीकेशन फॉर एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना होता है. और फिर जो प्रोजेक्ट है, मतलब जैसे माइनिंग वाले को अगर माइनिंग करनी है तो उसने जो प्रोजेक्ट बनाया और सबमिट किया तो उसका रिव्यू होगा अप्रेजल कमेटी के द्वारा. अगर बड़ा मैग्नीट्यूड का प्रोजेक्ट है तो सेंट्रल कमेटी करेगी, बहुत छोटा है तो स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है इसको. तो इसका रिजल्ट जो होगा आइदर एक्सेप्ट हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा या फिर कुछ सजेशंस के साथ में अमेंड करके रीसबमिट होके फिर ये शुरू होगा. तो मैम प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट क्या कोई कंपनी होगी कि सरकार? दोनों में से कोई? यूजर एजेंसी. अच्छा, यूजर एजेंसी. हाँ, दैट इज यूजर एजेंसी. So I'm very sorry. Not at all, ma'am. Not at all. I'm just trying to. नहीं, बच्चों को मेन समझना है तो चलिए. Thank you. मैं इसको अभी आप ऐसे ही क्लियर करते जाइए, अदरवाइज हमें हो सकता है. नहीं, मैं बच्चों के बिहाफ में आपको परेशान करता रहूंगा. बिल्कुल जरूर करिए. Thank you. सो अभी हम क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज नीडेड, हम क्लियरेंस क्यों चाहिए. तो चूंकि फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड अंडर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980
एनी डाइवर्जन रिक्वायर अप्रूवल, और बिना अप्रूवल के हम इसको यूज नहीं कर सकते। कोई भी फॉरेस्ट लैंड हमको यूज करना है, क्यों हमारा जो गवर्नमेंट की एम सेट किया हुआ है, इनको क्या करना है, एनहेंस फॉरेस्ट कंजर्वेशन टू मीट द क्लाइमेट गोल्स इंक्लूडिंग अचीविंग नेट जीरो इमिशन, मतलब 2070 तक बिल्कुल जीरो इमिशन होना चाहिए, ये हमारा गोल सेट है। एंड क्रिएटिंग अ कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 बाय 2030 तक हमको ये गोल सेट किया है। तो इन सबके चलते हुए डाइवर्जन के लिए इतनी सारी कंडीशन अप्लाई की हुई अंडर द प्रोटेक्शन एक्ट। एंड एफर्ट्स फोकस ऑन इंक्रीजिंग फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी को भी हमको प्रिजर्व करना है। एंड जो हमारी कम्युनिटी है, फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी है, उनको भी हमें सपोर्ट करना है, उनके साथ ही हमको चलना है, उनको बैलेंस करते हुए, जितना भी इकोलॉजिकल बैलेंस, कल्चरल एंड इकोनॉमिक नीड है, सबके साथ एक बैलेंस बनाते हुए हमको आगे बढ़ना है। फिर जैसे अभी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी है जो 1986 का है, वो उसकी जो लिंक EIA में काफी सारे रिक्वायरमेंट उसमें आती है, और उसमें EIA जब स्टडी होता है तो उसके बाद हमें क्या अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने हैं वो भी इसमें रिकमेंड किए जाते हैं। प्रोजेक्ट कमेंसमेंट के पहले हमको ये सारी इसमें EIA स्टडीज में ये EIA स्टडी जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी है, हाँ, इसमें क्या क्या देखते हैं? इसमें मतलब प्रेडिक्शंस देते हैं कि जी। जो भी आप प्रायर ये अप्रूवल के पहले की स्टडीज है कि हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है, इसके प्रभाव क्या हो सकते हैं। अब मान लीजिए वहाँ कोई रेयर एंडेंजर्ड थ्रेटेंड स्पीशीज है तो क्या हमारी वो खत्म हो जाएगी, तो उसके लिए हमारी क्या रिकमेंडेशन है, क्या हमारे मतलब मेजर्स हम क्या ले रहे हैं उसके लिए। तो वो सारे जितनी भी रिकमेंडेशंस है, कोई हो सकता है एंडेमिक स्पीशीज हो तो उसके लिए हमें क्या करना है, और कोई एनिमल वहाँ रेयर है, वो सारी चीजें हमको लेते हुए, हो सकता है कोई कम्युनिटी अफेक्टेड हो रही है, हमको कम्युनिटी के बारे में भी देखना है। तो उन सब के जो प्रेडिक्शंस है वो हमें प्रोजेक्ट के कमेंसमेंट ऑफ द ऑपरेशन। तो जैसे अगर मुझे माइनिंग करनी है कहीं पर, तो मैं अप्लाई करूंगा और फॉरेस्ट लैंड में माइनिंग की लीज मुझे मिलनी है, तो फॉरेस्ट लैंड जो कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट लैंड है, अब नॉन फॉरेस्ट पर्पस के लिए यूज होगा माइनिंग, तो नॉन फॉरेस्ट, तो मैं जब अप्लाई करूंगा तब ये स्टडी होगी उस समय। हाँ जी जी, कि वहाँ क्या क्या है। जी हाँ जी, जैसे वो उसमें बोला ना, फर्स्ट तो हम लोकेशन देख लेंगे कि लोकेशन ऐसा तो नहीं है कि उसके 10 किलोमीटर के अंदर कोई प्रोटेक्टेड एरिया या टाइगर रिजर्व आ रहा है, आइदर कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट आ रहा है, तो वो सब आ रहा है तो वो फर्स्ट उसमें ही रिजेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज सेकंड स्क्रीनिंग वाली प्रोसेस में कुछ चीजें चली जाएगी। जी। और फिर वो सब क्लियर कर गया तो थर्ड स्टेप आता है EIA, अगर रिक्वायर्ड है तो फिर EIA में इम्पैक्ट असेसमेंट जो भी है वो प्रेडिक्शन है, दैट इज द प्रेडिक्शन प्रायर टू द ऑपरेशन। वेरी गुड, थैंक यू। ओके, इसमें अथॉरिटीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, MAOCC जो है हमारी, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, एंड रीजनल एम्पावरमेंट कमिटीज, ये सारे होते हैं। मैं इसको शॉर्ट में कर रही हूँ बिकॉज बच्चों को ये प्रोसेस में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। फिर कुछ हमको रिलैक्सेशन कहाँ मिल सकता है, ये हमारे जस्ट नॉलेज के लिए है। अगर हम स्मॉल स्केल पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, सपोज हमें कहीं स्कूल बनाना है, कहीं हॉस्पिटल बनाना है, और जो एरिया है दैट इज लेस देन 1 हेक्टेयर, तो यहाँ हमें कोई क्लियरेंस की जरूरत नहीं है, रिलैक्स नॉर्म हमारे यहाँ पे यूज होंगे। और आइदर बॉर्डर रोड्स बनानी है, फेंसिंग करनी है, डिफेंस इंस्टॉलेशन नियर LOC LAC होना है, तो यहाँ पे दीज एरियाज आर एग्जम्प्टेड, ये इसमें कोई क्लियरेंस की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट जो प्रोसीजर है, जैसे उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, जैसे प्रोजेक्ट बनाया, सबमिट किया, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट किया, उसकी एक सेट प्रोसीजर है, उसके थ्रू हमको जाना होता है। स्क्रीनिंग करना, इवेल्युएशन करना, फिर स्टेट लेवल प्रोसेसिंग होता है, एंड सेंटर, फिर रिव्यू होगा, एंड प्रिंसिपल अप्रूवल होगा, वर्किंग परमिशन मिलेगा। ये सारे प्रोसीजर इसके
क्लियरेंस के लिए होते हैं, एंड लास्ट में जो है फाइनल अप्रूवल होगा एंड पोस्ट क्लियरेंस मॉनिटरिंग इसकी होगी। तो ये सारी छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि अभी उतना डिटेल में जाने की इसमें जरूरत नहीं लग रही है। फिर कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि हमको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो ये एक लिस्ट है, जब भी हम क्लियरेंस के लिए जाएंगे तो ये सारे इक्विपमेंट की जरूरत होगी। फिर समरी में हम ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट क्लियरेंस इज अ स्ट्रक्चर येट इंट्रिकेटेड प्रोसेस डिजाइन टू बैलेंस डेवलपमेंट नीड विद इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन। मतलब हमें डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन हमें अपने जो एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना है, उसके साथ बैलेंस बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है। All engineering and infrastructure project must align with forest conservation principles to ensure minimal environmental impact। मतलब ऐसा इस तरह से काम करना है कि हमारा एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट कम से कम हो, ज्यादा डैमेज नहीं हो। मतलब कोर मैसेज ये हो सकता है, फॉरेस्ट एंड आवर लेगेसी, क्लियरेंस मस्ट प्रिजर्व नॉट डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट। ये मैसेज हमारा इससे जाता है। फिर अभी प्रोसीजर हो गया, उसमें हम ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। अभी हम जाना प्रेजेंट स्टेटस हमारा क्या है, लैंड डाइवर्जन कितना हो चुका है। जैसे 1980 का जो आपका लॉ है, उसके बाद से ये फिगर जो है 2015 तक, 14-15 तक का है। ये इस समय तक हम मतलब 12 लाख हेक्टेयर लैंड हम डाइवर्जन कर चुके थे। और मतलब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि उसमें सबसे हाईएस्ट जो एरिया है 3 लाख लगभग, जो मध्य प्रदेश का एरिया था, और फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश से काफी सारा लैंड डाइवर्जन होता पहले भी हुआ है और अभी भी होता आ रहा है। फिर आगे 15 के बाद 15 से अब से 25-26 तक का देखिए, फिर 2 लाख हेक्टेयर, 2,15,000 हेक्टेयर एरिया फिर से डाइवर्ट हुआ। मतलब अगर हम उस दोनों को टोटल करें तो ये एरिया लगभग आता है 14,16,513 हेक्टेयर। तो अभी तक जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के बाद जो हमारा एरिया डाइवर्ट हुआ है, वो इतना एरिया डाइवर्ट हो चुका है। अगर आप पर डे निकालेंगे तो लगभग 60 हेक्टेयर एरिया पर डे हमारा गया हुआ है। और अभी जो नया ट्रेंड देखने में आया है पिछले 2 सालों में, तो ये जो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है, डाइवर्जन बहुत ज्यादा एकदम हाई हो गया है। तो अभी 2 सालों का जो फिगर है वो है 45,124 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड। ये जुलाई 26 का रिपोर्ट है, और इतना एरिया हमने पिछले 2 सालों में डाइवर्ट किया है। फिर ग्रेजुअल और डिटेल स्टडी किया तो ग्रेजुअल इंक्रीज भी देखने को मिला है। तो फॉरेस्ट लैंड 25-26 से अभी काफी बढ़ गया है, रादर देन 24-25 का जो फिगर है। और यहाँ फिर देखिए मध्य प्रदेश में +116% हाई हुआ, अरुणाचल में +43%, झारखंड 82%, छत्तीसगढ़ 94%। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा लैंड डाइवर्जन के केसेस हैं। Diversion would mean change of land from forest to non-forest. Non-forest use. Like, Children may please note down all these important aspects. Thank you, ma'am. Thank you, please. अगर हम डिफरेंट ईयर्स में देखेंगे तो एक ट्रेंड देखिए आप, लगातार लगभग जो हमारा लैंड डाइवर्जन के केसेस है, जो बढ़ते केसेस की मतलब जो हेक्टेयर एरिया है, वो हमेशा बढ़ता हुआ ट्रेंड एक दिखा रहा है। अगर हम सेक्टर वाइज देखेंगे कहाँ पे ज्यादा जा रहा है, तो देखिए माइनिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा लैंड डाइवर्ट हो रही है। जो हमारी टोटल लैंड डाइवर्जन है अभी तक का, उसका 22% जो है माइनिंग सेक्टर में जा रहा है। जो हाईवे रोड्स में जा रहा है 18%, इरिगेशन डैम में जा रहा है हमारा 18%, ट्रांसमिशन लाइन में 11%, डिफेंस एरिया के लिए 9% है, अदर्स स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए 9% है। फिर 5% रेलवे में जा रहा है, हाइडल प्रोजेक्ट्स के लिए 5% है, विलेज कन्वर्जन के लिए भी 2% है, एंड थर्मल के लिए 2%। तो जो सबसे ज्यादा लैंड डाइवर्ट हो रही है वो माइनिंग के लिए है। इट मे बी कोल माइन, इट मे बी आयरन माइन, व्हाटएवर। तो ये सेक्टर वाइज स्टेटस है हमारा लैंड डाइवर्जन का।
or there are so many examples where very rich forest land got diverted for developmental projects. बहुत सारे examples है, तो I am giving, मैं यहाँ पे थोड़े से example बताना चाहूंगी. जैसे देखिए नवी मुंबई एयरपोर्ट है, रिच हैबिटेट, बर्ड हैबिटेट है. यहाँ एक पिक्चर में आप शायद देख पा रहे होंगे कितना बर्ड्स का पॉपुलेशन है, फ्लैमिंगोस की पॉपुलेशन देखे यहाँ पर. इसके बाद भी 2866 हेक्टेयर लैंड डाइवर्ट हुआ, मतलब रिच हैबिटेट होने के बाद भी. तो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द सिनेरियो. अभी कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, कितना ह्यूज एरियाज जो हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं, बट डेवलपमेंट करना नीड है. तो एनवायरमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक बैलेंस बनाते हुए हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और लैंड उसमें जा रही है. और जो लैंड डाइवर्ट होती है उसके लिए हम कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन करते हैं उतने ही इक्वल लैंड में. फिर ये पर्वन मल्टीपर्पज इरिगेशन प्रोजेक्ट देखिए, ये इतना ह्यूज फॉरेस्ट आपको पीछे दिख रहा है. नेक्स्ट जो बनने के बाद में पूरा गायब हो गया. तो ये सारी लैंड डाइवर्ट हो रही है डिफरेंट उसमें. इतना रिच लैंड्स है. राजस्थान में तो वैसे ही फॉरेस्ट नहीं है, इसके बाद भी जो व्हाटएवर फॉरेस्ट इज देयर, उसके बाद भी वो फॉरेस्ट चला गया. अभी ये हमारा मध्य प्रदेश का बात आता है. ये जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है 3 स्टेट को कवर करता है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात. जो डैम हमारा बना हुआ है वो गुजरात में बना हुआ है. और कितना रिच एरिया इसमें समर्ज हुआ है. टोटल एरिया जो हमारे डूब में आया है वो 37,000 हेक्टेयर पूरे तीनों स्टेट्स का मिलाते हैं. और 13,000 हेक्टेयर एरिया जो है वो फॉरेस्ट लैंड गया है. सोचिए इतना. इसमें काफी मेधा पाटकर जी ने काफी प्रोटेस्ट किया हुआ था, बहुत प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट प्रोटेस्ट ये हमारा डैम तैयार हो चुका है. प्रोग्रेसिव फिलिंग अभी भी चल रही है इसकी. सो ये पिक्चर है, देखिए रिच फॉरेस्ट एरिया आर बीइंग सबमर्ज्ड हियर. अभी ये देखिए ओर माइनिंग, आयरन ओर माइनिंग इन गोवा. इसमें कितना एरिया गया माइनिंग में? मैं बोली थी कि सबसे ज्यादा एरिया जो है माइनिंग में जा रहा है. 30,325 हेक्टेयर एरिया, जो रफली 8% ऑफ द टोटल स्टेट का जो इतना एरिया है. फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए कितना सुंदर फॉरेस्ट है, रिच फॉरेस्ट एरिया इज देयर. जैसे जैसे माइनिंग बढ़ती गई एरिया सब प्लेन होता गया. तो रिच साइट्स आर बीइंग डाइवर्टेड. फिर यहाँ हम थोड़ा सा इस पे देंगे कि इतना सब डाइवर्जन हो रहा है, तो प्रोविजन फॉर कंट्रोल फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन, कंट्रोल कहाँ पर है? तो ये यहाँ पे 3 फ्रेमवर्क है. तो फर्स्ट फ्रेमवर्क जो है लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क. इसमें देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 स्टॉप्स एंड शिफ्टिंग ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू नॉन फॉरेस्ट विदाउट सेंट्रल अप्रूवल. इसमें अप्रूवल के बिना नहीं होता. फिर यहाँ से कंट्रोल होता है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2027, कंट्रोल फॉरेस्ट प्रोड्यूस, यूज एंड सेटअप रिजर्व फॉरेस्ट. इसके अंतर्गत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं वो डिक्लेयर होते हैं और जिनमें की कोई भी प्रैक्टिसेस अलाउड नहीं होती, तो वो सबसे सेफ हमारे रिजर्व तैयार होते जाते हैं. फिर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 88, उसमें एम ही है कि 33% जो है इंडिया का लैंड हमारा फॉरेस्ट के अंदर में आना चाहिए. और इसके लिए लगातार मतलब प्लांटेशन, रिफॉरेस्टेशन प्रैक्टिसेस एंड इवन ओवर रेवेन्यू लैंड्स पे भी ये सब हो रहा है. तो हमको हमारा जो टारगेट है 33% फॉरेस्ट इन इंडिया वो अचीव करने का वो चल रहा है. तो ये एक कंट्रोल ये भी है. फिर कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016, जिसमें भी न्यू जहां भी प्लांट ट्री प्लांटेशन का इसमें प्रोविजन है. प्लांटेशन जितना मैक्सिमम प्लांटेशन जितना हो सकता है. फिर सेकेंड जो फ्रेमवर्क है दैट इज कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम. तो हमारे पास प्रोटेक्टेड एरिया है एक वो है. फिर एफॉरेस्टेशन स्कीम्स है लाइक ग्रीन इंडिया मिशन है. फिर कैंपा है जो हमारे जो डिग्रेडेड एरियाज है उनको रिस्टोर करना और प्लांटेशन के लिए काम करती है. फिर फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट
It provides money to all the states to prevent and control, manage forest fire. जहाँ भी forest fire होते हैं तो उसको भी manage करते हैं. ये सारे चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि हमको forest को conserve करना है, protect करना है, बचाना है. थर्ड है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट. थर्ड फ्रेमवर्क में आता है कम्युनिटी. तो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है. इसमें लोकल कम्युनिटीज को और जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, कम्युनिटीज हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है. और नॉन फॉरेस्ट टिम्बर वो फॉरेस्ट से लेते हैं और वो बदले में डिग्रेडेड फॉरेस्ट को बिल्ड करते हैं, रीबिल्ड करते हैं. और फॉरेस्ट राइट एक्ट रिकॉग्नाइजेस द राइट्स ऑफ ट्राइबल and forest dweller communities, making them responsible for protecting local wildlife and for woods. तो ये इनको राइट्स हैं, लेकिन उनके साथ साथ इनका ये ड्यूटी भी है टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट. तो इस तरह से ये डिफरेंट फ्रेमवर्क हैं जो हमारे फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन को कंट्रोल में रखते हैं. अब इसमें क्या होना चाहिए? हमारी जो गवर्नमेंट को है एंड लोकल अथॉरिटीज को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना चाहिए हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट विदाउट एनी, मतलब कोई हमको ढील नहीं देना चाहिए, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए. फिर मैंडेट रिग्रेस इकोलॉजिकल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बिफोर प्रोजेक्ट. जब भी कोई प्रोजेक्ट अप्रूव होता है उस एरिया में जहाँ का लैंड डाइवर्ट होने वाला है, तो उसका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत रिग्रेसली होना चाहिए. फिर एंश्योर जेन्युइन लोकल कम्युनिटी कंसेंट थ्रू, ग्राम सभा के थ्रू जेन्युइन इनकी कंसेंट होनी चाहिए. कभी कभी क्या होता है प्रोजेक्ट में कंसेंट हुई भी नहीं और डॉक्यूमेंट डल जाता है, जो क्लियरेंस के लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए. दैट इंश्योर जेन्युइन इनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जेन्युइन इनकी कंसेंट होनी चाहिए, तभी वो इस प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन के लिए काम करेंगे. और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, improve monitoring of compensatory afforestation to prevent real habitat loss. क्या आप जो खो रहे हैं, आपने जो लैंड डाइवर्ट कर दी, जितना रिच लैंड डाइवर्ट किया, क्या आप कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन के थ्रू उसी तरह का लैंड, उसी तरह का एनवायरमेंट डेवलप कर पा रहे हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस पॉइंट को बहुत ज्यादा इंप्रूव होना है. फिर फर्दर नीड हमारी क्या है, मतलब फर्दर नीड फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स. तो इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव क्रिएटेड मैसिव डिमांड फॉर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल एंड डिजिटल बोथ, एंड कंट्रीज ग्रोथ इज बीइंग शेप्ड बाय डीप मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, स्किल, टैलेंट, efficient infrastructure and cities prepares for the future. इन सब के लिए हम ये हमारे प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं. डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आर एसेंशियल टू रिड्यूस पॉवर्टी. एक पॉवर्टी को भी रिड्यूस करना है, बिल्ड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाने हैं, क्रिएट जॉब एंड इम्प्रूव द डेली क्वालिटी लाइफ. डेली क्वालिटी लाइफ इन अ कंट्री, इन अ नेशन विद अ लार्ज पॉपुलेशन. तो कितना पॉपुलेशन है इंडिया का वो हम सब जानते हैं. उसके साथ, उतनी पॉपुलेशन के साथ उस पॉपुलेशन को हमको डेवलपमेंट देना है, उतना ह्यूज अमाउंट में हमको सारे स्ट्रक्चर्स डेवलप करने, उसके साथ में करते हुए हमको ये सारे प्रोजेक्ट को मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है. मीन व्हाटएवर वी हैव उसको हमको अगली जनरेशन के लिए भी छोड़ना है ना. ऐसा नहीं है कि हमारे पास जितना फॉरेस्ट है हम अभी यूज कर रहे हैं, आगे क्या होगा वो हम नहीं जानते. ऐसा नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है तो हमको अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आने वाले हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के लिए भी सोच के रखना है कि हमको इनको बचाना है, इनको सस्टेन करते हुए आगे बढ़ना है. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये 3 पिलर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हमको किन किन के बीच में बैलेंस बनाना है. एनवायरमेंट, अवाइवल नेचुरल एनवायरमेंट, फिर है सब इकोनॉमी एंड सोसाइटी. तीनों के बीच में बैलेंस बनाते हुए हमको डेवलपमेंट करना है. वी कैन नॉट स्टॉप डेवलपमेंट की हमारा फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट हो रहा है तो हम डेवलपमेंट को स्टॉप नहीं कर सकते. तो इन तीनों फैक्टर्स, तीनों पिलर्स को हमको बैलेंस करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना है. अभी हम आते हैं नेक्स्ट जो है, व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ लैंड डाइवर्जन. लैंड डाइवर्जन हो रहा है तो क्या इम्पैक्ट्स हो रहे हैं
उस पर डिस्कशन करते हैं। तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी आप फ्रीली इसमें पार्टिसिपेट करें हमारे साथ में। हम फोटोग्राफ्स ज्यादा इसमें यूज करेंगे। देखिए इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या हो रहे हैं, लैंड आप डाइवर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो रही है, मतलब लीनियर प्रोजेक्ट, रोड्स बन रहे हैं, पावर लाइंस डल रही है, कंटिन्यूअस फॉरेस्ट ब्लॉक्स इनटू स्मॉलर पैचेस। बड़ा बड़ा जो फॉरेस्ट एरिया है वो स्मॉल पैचेस में कन्वर्ट होता जा रहा है। डिसरप्टिंग वाइल्ड लाइफ मूवमेंट कॉरिडोर, मतलब वाइल्ड लाइफ को मूव करने के लिए कॉरिडोर भी खत्म हो गए हैं। इस तरह की जो इफेक्ट इम्पैक्ट हमको देखने को मिल रहा है। फिर हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो रहा है। क्लियरिंग रिच इकोसिस्टम डिस्ट्रॉयज नेटिव फ्लोरा फौना हैबिटेट, पुशिंग वल्नरेबल स्पीशीज क्लोजर टू द एक्सटिंक्शन। मतलब इतना ज्यादा लॉस हो रहा है स्पीशीज का कि कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्शन तक आ चुकी है। फिर क्लाइमेट एंड वाटर डिस्ट्रप्शन, रिड्यूसिंग ट्री कवर, lowers local carbon absorption, alerts rainfall pattern, रेनफॉल पैटर्न को भी ऑल्टर कर रहा है, एंड वीकनिंग वाटरशेड, हेल्थ को कम कर रहा है, इंटेंसिफाइंग फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन। ये सब बढ़ते जा रहे हैं, सॉइल इरोजन भी बढ़ रहा है और फ्लड भी, जगह जहाँ फ्लड है तो और बढ़ता जा रहा है, और जहाँ सॉइल इरोजन था वहाँ और बढ़ता जा रहा है। तो ये चीजें इंटेंसिफाई होती जा रही हैं। तो ये हमारे इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है लैंड डाइवर्जन, फॉरेस्ट लैंड डाइवर्जन के। ये देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, फर्स्ट पिक्चर में डेंस फॉरेस्ट एरिया, रोड्स गए, यहाँ पे हैबिटेट फ्रेगमेंट हो गया। इवन देखिए बर्ड्स को भी मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। ये टर्की फोटो है टर्की मूवमेंट्स की, तो ये इनका हैबिटेट ब्रेक हो गया है, फ्रेगमेंट हो गया है। ये अपना हैबिटेट दूसरे उसमें रोड क्रॉस कर रहे हैं। जैसे ये एलिफेंट है, ये इधर कर रहा है, तो ये सिनेरियो है, हो रहा है हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन के केस में। मतलब ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या सोल्यूशन कर सकते हैं? अभी जो कुछ EIA स्टडीज हो रहे हैं, जैसे अभी नागपुर का जो हाईवे का स्टडी हुआ था, उसमें कुछ ओवर ब्रिजेस बना रहे हैं, ओवर ब्रिज बना रहे हैं, जिससे जो वाइल्ड लाइफ है वो ओवर ब्रिज से मूव कर जा रहा है, नीचे से गाड़ियां व्हीकल की मूवमेंट हो रही है। और कहीं जहाँ पॉसिबल है अंडर पासेस भी बना देते हैं, तो अपना जो एनिमल का मूवमेंट, ये सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इनके एनिमल के मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन फिर इसके बाद भी कैजुअलिटी हो रही है, रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एनिमल्स कैजुअलिटी हो रही है, होती जा रही है इसमें कंटिन्यूस। अभी देखिए ये पूरा एक हैबिटेट है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इट गॉट फ्रेगमेंट हो गया दो बार। मान लीजिए यहाँ से बड़ा हाईवे निकल गया तो दो पार्ट में चला गया। अब दो पार्ट में होने में जो मेजर आपका मेजर फोना था, जो कि इंटीरियर हैबिटेट था, इंटीरियर हैबिटेट ब्रेक हो गया, तो मेजर फोनल स्पीशीज जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और जो एज वाली स्पीशीज है वो इंक्रीज होने लग जाती है। तो इस तरह से आप देखिए अगले पिक्चर में यहाँ पे जो मेजर फोना गायब भी हो गया। इस तरह के हमको लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस होते हैं। ये तो हमने एनिमल के केस में देखा, प्लांट की सबसे ज्यादा लॉस होती है, एनिमल स्पीशीज से ज्यादा लॉस जो होता है हमारा फ्लोरा लॉस होता है। फ्लोरल स्पीशीज बहुत ज्यादा इसमें डैमेज हो रही है, हमने बहुत सारी स्पीशीज इसमें लॉस करते हैं। तो ये जो हमारा एक इम्पैक्ट है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एनिमल एज वेल एज प्लांट्स। फिर एक है सोशो इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस इम्पैक्ट। देखिए कभी कोई प्रोजेक्ट आया, रिवर प्रोजेक्ट, डैम प्रोजेक्ट आया, जैसे हमने देखा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के बारे में। तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट आने में कितना एरिया सबमर्जेंस में आया, और वहां जो गांव थे बीच बीच में, फॉरेस्ट लैंड तो डूबा ही डूबा, उसके साथ साथ जो उन एरिया में जो विलेजेस थे, वहां के इनहैबिटेंट्स भी वहां से मूव करके दूसरे, जहाँ हालांकि इसमें RR प्लान भी होता है, रीसेटलमेंट उनका किया जाता है, रिहेबिलिटेट किया जाता है, लेकिन वो अपने पुराना जो उनका रेसिडेंट था, जो पुरानी चीजें थी, वो सब छूट जाती है। तो इसलिए तो फॉरेस्ट डिपेंडेंट ट्राइबल एंड लोकल कम्युनिटी लूज देयर ट्रेडिशनल लाइवलीहुड, उनकी खत्म हो जाती है। कोई अपना बिजनेस, छोटा सा लाइवलीहुड प्रैक्टिस था, वो उसका खत्म हो जाता है।
ग्रेजिंग लैंड्स उनके कैटल्स को नहीं मिल पाता है, एंड एक्सेस टू द माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो फॉरेस्ट ही खत्म हो गया वो वहां से हट गए, तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से रिलेटेड भी उनका अगर कोई लाइवलीहुड था वो भी खत्म हो जाता है। फिर एक और इसका इनइफेक्टिव रिप्लेसमेंट, इट इज, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम हमारे बच्चों के लिए, और ये रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट एवर प्लांटेशन हम जो क्रिएट करते हैं, क्या वो कंपनसेटरी जो हम एफॉरेस्टेशन करते हैं उससे फुलफिल हो जाते हैं क्या? प्लांटेशन क्रिएटेड थ्रू कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन ऑफन यूजेस कमर्शियल, इसमें क्या ज्यादातर कमर्शियल मोनोकल्चर इंस्टेड ऑफ रिस्टोरिंग कॉम्प्लेक्स ओरिजिनल बायोडाइवर्स इकोसिस्टम। जो हमारा पुराना इकोसिस्टम था वो यहाँ पे मोनोकल्चर्स में हमको वो देखने को नहीं मिलता। और इसके साथ साथ क्या है, मोनोकल्चर वुड मीन वन टाइप ऑफ प्लांट। हाँ, मोनोकल्चर जैसे टीक लगा दिया या खमेर लगा दिया तो दैट इज मोनोकल्चर। बैम्बू लगा दिया, बैम्बू के अलावा कोई और दूसरा स्पीशीज नहीं है। अभी मैं आपको एक पिक्चर यहाँ पे शो करती हूँ। और एक और इम्पैक्ट जो है वो इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट, नेचुरल माइग्रेशन पाथ ब्लॉक हो जाते हैं, फ्रेगमेंटेशन हो गया, ब्लॉक हो गए, वाइल्ड एनिमल जो है वो ह्यूमन सेटलमेंट की तरफ मूव करने लगे, इंटेंसिफाई, और ये जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ जाता है। ये इस तरह के इम्पैक्ट है। अभी आपको ये हम जो कम्युनिटी डिस्प्लेसमेंट का सिनेरियो दिखाते हैं। ये देखिए कम्युनिटी, जहाँ ये सरदार सरोवर के विलेज आसपास के विलेजेस हैं, ये विलेजेस समर्जेंस में आए, ये देख पानी भी भर गया, ये सारा अपना विलेज छोड़कर दूसरे जहाँ सेटलमेंट इनको दिया होगा उन जगहों पर चले गए। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज ये बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है। फिर जैसे मैं बात करी थी इन इफेक्टिव रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट फ्लोरा एंड फोना, वॉट एवर वी हैव लॉस्ट, उसका जो इन इफेक्टिव रिप्लेसमेंट हो रहा है उस पे हमको और फोकस करना है और रिसर्च करनी है और स्पेशल एम्फेसिस इसमें देनी है। ये देखिए, एक मैं आपको ये पिक्चर शो कर रही हूँ, दिस इज नेचुरल फॉरेस्ट, इसके पिक्चर को देखिए, दिस इज प्लांटेशन एरियाज। अब कोई मुझे बताएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस आपने देखा, कुछ नोटिस किया क्या? एनीवन? दिस इज प्लांटेशन एरिया, सपोज कंपनसेटरी प्लांटेशन एरिया है ये, और व्हाटएवर हमने जो डाइवर्ट किया वो लैंड ये है। तो कोई हमें बताएगा? कम फॉरवर्ड। दोनों में क्या डिफरेंस? ये एक पिक्चर ये है, एक पिक्चर ये है, अभी दोनों में डिफरेंस बताइए, आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं? You can speak out, please raise your hand. Aradhya, you can answer. Ma'am, I guess the difference between both of them, both of the natural forest and the plantation, is that in the natural forest we can see there is a large amount of vegetation, like the forest is very bright and big, and in the plantation we can see very less amount of trees that can lead us to deforestation. प्रॉपर ऑडिबल नहीं है सर ये। नहीं, द चाइल्ड आई थिंक मैं जो सुन पाया उससे ये कहना है कि जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो ज्यादा थिक है, उसका वेजिटेशन कैनोपी कवर जिसको हम कहते हैं वो ज्यादा अच्छा है। ओके, फॉरेस्ट डेंसिटी अच्छी है और डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट प्लांटेशन की बहुत कंपैरेटिवली। जी, वेरी गुड, एक पॉइंट नोट किया उन्होंने, अच्छे से समझा उसको। Anyone else would like to try to answer? Go ahead, इससे मत डरिए कि आपका आंसर गलत हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अरे बच्चों, ओपन डिस्कशन है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बोलिए, फिर आपको लगेगा हमें बोल देना चाहिए था बाद में। Ma'am, according to me, I guess What? Go ahead, Soumya, you unmute yourself, please.
Yes, according to me, I guess the natural forest is more dense, as she mentioned, and the plantation area is not properly monitored, so it didn't get as much resources to be as dense as the natural forest. Will you repeat, sir? Ma'am, she's again saying that the plantation area is not as dense as. Okay, Am I okay. right, Soumya? That's what you want to say? More dense. Density is different. Okay, sir. So, ठीक है, very good. I would like clap to all of you. ये देखिए, ये dense forest area है. That is one point. See here, see the biodiversity. कितना diverse kind of plants. Diversity कितना ज़्यादा है यहाँ पर. It's home for wildlife also. यहाँ पर wildlife भी है, इनका घर भी है. प्लस आप देखिए यहाँ पर आपको पानी भी देखने को मिला. Water resources are also there. Ma'am, I guess the delegates wants to add some more few points. As of now, Radhya wants to answer one more thing. Okay. Yes, Radhya, you may go. Ma'am, I would like to add one more point. That is, ma'am, in the natural forest, we can see that it grows due to the natural process occurring in our atmosphere. And in the plantation, we can see that we ourselves grow the trees in the barren land, I guess. Okay. Kindly repeat, sir. मैम अगेन शी इज सेइंग कि नेचुरल फॉरेस्ट में पौधा अपने आप उगता है प्रकृति के प्राकृतिक आवास में और आर्टिफिशियली प्लांटेशन को आर्टिफिशियली हम डेवलप करते हैं ओपन बैरन लैंड पर. दैट्स व्हाट यू वांट. Okay, जी. All right. Very good. Yes, आप good. देखिए, अभी मैं I should interrupt here. प्लीज प्लीज प्लीज. इसमें कितना स्टोरी दिखाई दे रहा है ना. That is called multi story. एक में आपको नीचे भी दिख रहा है, बीच में भी दिख रहा है. Different age groups are there, but in plantation you are not able to see that. Am I right? So यहाँ water resources also there. In animal home is there. यहाँ communities के लिए forest produce are also there. आपने plantation में तो नहीं लगाए ना, but यहाँ naturally it grows. तो सबसे पहले तो आप देखिए एक इकोसिस्टम आपको इसमें दिखाई दे. रिच फॉरेस्ट इकोसिस्टम आपको दिखाई दे रहा है. वाटर है, एनिमल है, कम्युनिटी है, रिच डाइवर्सिटी है. ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रहे हैं. जब हमने इस तरह का लैंड डाइवर्ट कर दे रहे हैं, हम इस तरह का लैंड को नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए दे रहे हैं. माइनिंग हो गई, पता चला यहाँ पर डैम बन गया कोई, और फिर हमने एक दूसरा जो हमारी जो यूजर एजेंसी है, जो माइनिंग वाले, उन्होंने एक कोई लैंड ट्रांसफर किया नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए, और इस तरह से प्लांटेशंस खड़ा कर दिया. तो क्या हमारी वो जो नीड थी वो मीट हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही. तो जो मैं बात कर रही थी कि हमको इस फील्ड में कंपल्सरी जो फॉरेस्टेशन हो रहे हैं, इसमें बहुत मॉनिटर करने की जरूरत है, बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. जब हम क्लियरेंस की प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें हमें बहुत सारी कंडीशंस बनानी है. बिल्कुल मोनोकल्चर एक्सेप्ट नहीं करनी है. ठीक जल्दी बड़ा हो जाता है, दिखने लगता है कि प्लांटेशन हो गया, तो ऐसा नहीं. मिसलेनियस स्पीशीज भी लगाइए, फ्रूट बियरिंग स्पीशीज लगाइए, जितना वेराइटी ऑफ नेटिव स्पीशीज है, और हमें जो एग्जॉटिक स्पीशीज है बिल्कुल अलाउ नहीं करने. ये थोड़ा डिफरेंस आप नेटिव और एग्जॉटिक में समझा देंगे प्लीज. अच्छा, जो नेटिव स्पीशीज है, जिस एरिया में जो स्पीशीज ग्रो कर रहा है, जिस बायोजियोग्राफिकल जोन में जो स्पीशीज ग्रो कर रही है, सिमिलर स्पीशीज को ही हमको प्लांटेशंस के लिए लगाना चाहिए. हम बाहर से नया स्पीशीज ले आए, यूकलिप्टस हमारा इंडिजिनस स्पीशीज नहीं है. ऑस्ट्रेलियन एकेशिया बहुत कुछ साल पहले ये सब बहुत प्लांटेशंस हुए. अभी तो थोड़ा अवेयरनेस आ गई है, तो ये इनके चेक लग गया है. अभी इतना प्लांटेशन इनका अलाउड नहीं हुआ है. तो उस तरह की चीजें मतलब अलाउ नहीं करना चाहिए. एग्जॉटिक स्पीशीज मतलब जो बाहर की स्पीशीज है, जो हमारी नेटिव फोना की स्पीशीज, फ्लोरा की स्पीशीज नहीं है, तो वो हमें प्लांटेशन के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए. मिक्स, और ये जो हम सिंगल स्टोरी बना रहे हैं, सिवाय
टू मेक सिंगल स्टोरी. आप देखिए ग्रासेस कितना कम दिख पा रहे हैं यहाँ पे, ग्रासेस है ही नहीं ना. अभी इसमें हमको ग्रासेस भी प्लांट करनी चाहिए. सॉइल जैसे जैसे धीरे रिच होना शुरू होगा, दूसरे सीड्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो ग्रो करेंगे. अब बैरन लैंड, ऐसे खाली लैंड रहेगा तो इस पे तो बारिश में थोड़ी सी ग्रासेस जरूर आ जाती है, लेकिन उसके बाद खत्म हो जाती है. तो अभी अगर चलते चलते यहाँ हमको एक कॉरिडोर मेंटेन करना पड़ेगा. मतलब जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट से जहाँ भी प्लांटेशन है वहां से कनेक्टिविटी बनाते हुए, और इसमें मल्टी स्टोरी प्लानिंग हमको देनी पड़ेगी. सॉइल को रिच करना पड़ेगा, ग्रासलैंड को बढ़ाना पड़ेगा, तभी धीरे धीरे हर्बीवोर्स आना शुरू होंगे. हर्बीवोर्स जब आना शुरू हो जाएंगे तो कुछ सालों बाद ये तो नेचुरल जो फॉरेस्ट जो हमने खोया है उसको पाने के लिए तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर लगेंगे. तो कुछ लेकिन हम अपने तरफ से एफर्ट्स तो कर सकते हैं ना. एक क्वेश्चन और है मेरा कि क्या ये सही है कि कुछ स्पीशीज साल है, ऐसी स्पीशीज हैं जो डायबैक स्पीशीज भी कहलाती हैं, क्या ये स्पीशीज ऐसी हैं जिनको हम रीजनरेट खुद नहीं कर सकते हैं, केवल प्रकृति ही रीजनरेट करती है? देखिए उसमें रीजनरेट डाइंग बैक होता है साल में. साल का प्लांट जहाँ भी ग्रो है, हमने एक प्रोजेक्ट थर्मल पावर प्रोजेक्ट में EIA किया था कोरबा में, तो वहाँ एकदम बैरन एरिया पड़ा हुआ था. NTPC ने कुछ एरिया फेंस कर दिया. फेंस करने के विद इन 5 years वो इट ग्रोज वेरी ब्यूटीफुल साल फॉरेस्ट. उन्होंने लगाया कुछ भी नहीं, बट जो नीचे स्टॉक था, रूट स्टॉक, वो ग्रो होके इतना, तो फॉरेस्ट ये सारी चीजें इट नीड प्रोटेक्शन. उनको प्रोटेक्शन मिला तो ये अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाते, सर्वाइव करने लगते हैं. What I have also read that the sal seed to germinate, one way इसकी वो जब एंटीलोप खाता है तो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम से जब वो निकलता है तब उसके जर्मिनेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है. साल में विविपेरी भी होता है, अगर कभी सीड लटकते लगते वहीं से भी ग्रो कर जाता है. अच्छा, जी जी, जी. हाँ, विविपेरी, इट्स कॉल्ड विविपेरी. साल का बहुत जो वाइबिलिटी ऑफ साल इज वेरी लो, एटलीस्ट 10 days to 15 days. वाइबिलिटी बहुत ही कम होता है उसका. तो जैसे खाया तो जल्दी अगर जर्मिनेट हो गया तो वो हो जाएगा, अदरवाइज डिले किया, फेवरेबल कंडीशंस मिल गई तो वो ग्रो कर जाएगा, अदरवाइज ग्रो नहीं करेगा. अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हमारे सारे कोल ब्लॉक्स जो हैं वो साल फॉरेस्ट के नीचे हैं. यस, ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जितना कोल है हमारा मध्य प्रदेश में. यस. तो हमारा बहुत सारा साल फॉरेस्ट बहुत कम हो गया है हमारा. एक तो शुरुआत के समय में व्हेन अंग्रेज हमारे कंट्री में वो स्लीपर्स के लिए, रेलवे स्लीपर्स के लिए कटिंग किया, बहुत हार्वेस्ट हुआ उस समय, साल गया, बहुत सारा साल उस समय लॉस किया. और अभी माइनिंग एरियाज में तो है साल बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है. तो ये जो हमारे कंपनसेटरी फॉरेस्टेशंस हैं, इनको हमको जितना इम्प्रूव कर सकते हैं तभी जाके हम ये जो कंजर्वेशन नीड है, कंजर्वेशन. लो बैटरी बता रहा था, लो हो गया, जस्ट अ मिनट सर. ओके, हमें ये जो इसको जब तक हम इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक हम अपने फ्लोरा का कंजर्वेशन प्रॉपरली नहीं कर सकते. डेंसिटी एज वेल एज मल्टी स्टोरी एज वेल एज हमारा जो अवॉइड मोनोकल्चर, ये सारी चीजें हमको अवॉइड करनी पड़ेगी. और तभी जाके हम अपने जो फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट हुआ है उसके इक्विवेलेंट तो नहीं बोलेंगे, उसके जैसा प्रयास हम कर सकते हैं. तो हमको इस लाइन में बहुत काम करने की जरूरत है. बच्चे एग्री हैं इस बात से? हेलो, स्टूडेंट्स आर एग्री विद दैट पॉइंट? स्पीक आउट प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक आउट. Students are nowadays, ma'am, replying over emojis.
So you can see the flying emojis. They are Okay. this one. So चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें. फिर कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन ज्यादातर इकोलॉजिकली फेल क्यों हो जाते हैं देखते से, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, मोनोकल्चर फोकस रहता है, कमर्शियल ट्री प्लांटेशन और डाइवर्स नेटिव रिप्लेस हमको करना है उसको नेटिव फ्लोरा के साथ. नो वाइल्ड लाइफ वैल्यू, प्लांटेशन फेल टू रिस्टोर डिस्ट्रप्टेड एनिमल माइग्रेशन कॉरिडोर और नेटिव फूड वेव्स. देखिए अभी दिखाया था आपको, कोई भी स्पीशीज वहां नहीं है. जब ग्राउंड फ्लोरा वाइल्ड लाइफ को रहने के लिए क्या चाहिए होता है, कवर भी चाहिए होता है, उसको छुपने के लिए भी जगह चाहिए होती है. कोई प्रेडेटर आ गया तो मान लीजिए कुछ हिरन डियर स्पीशीज वहां मूव करने लगे. अब अगर कोई प्रेडेटर आता है तो ये डियर के लिए छुपने के लिए जगह होना चाहिए. जब तक हम उस स्टेज तक नहीं लेकर आएंगे जो कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन है, तब तक वो सक्सेस नहीं हो सकेगा. फिर लो सर्वाइवल रेट, जो स्पीशीज आपने लगाई सर्वाइव नहीं की, लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेज ही नहीं है. तो आपको जो प्लांटेशन साइट सिलेक्शन जो करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. साइट इस तरह का सिलेक्ट हो जहां पर वो जो प्लांट्स की नीड है, जिस तरह का एनवायरमेंट उस पर्टिकुलर स्पीशीज को जरूरत है, वो उसका एनवायरमेंट हम उसको दे पाए, तभी वो मतलब सर्वाइव भी बेटर करेगा और सक्सेस होगा. इकोसिस्टम मिसमैच, ट्रीज आर ऑफन प्लांटेड इन एंटायरली डिफरेंट, एक बायोजियोग्राफी जोन का ट्री है, आप दूसरे बायोजियोग्राफी जोन में लगा दे रहे हैं. वेस्टर्न एमपी की कुछ स्पीशीज को आप सेंट्रल एमपी में या ईस्टर्न एमपी में लगा दे रहे हैं, तो फिर वो उतना सक्सेस नहीं होता है. तो इकोसिस्टम मिसमैच नहीं होना चाहिए. सिमिलर इकोसिस्टम हमको वहां पे डेवलप करना है, सिमिलर काइंड्स ऑफ स्पीशीज सेलेक्ट करना है. साइट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट, स्पीशीज सिलेक्शन इंपॉर्टेंट, एंड मोनोकल्चर अवॉइड करना है, मल्टी स्टोरी क्रिएट करना है. और जो बिगिनिंग है ग्राउंड लेयर से लेके हमको डिफरेंट स्टेटा में जाना है, डिफरेंट स्टेटा बनाना है, एंड ट्राई टू एस्टैब्लिश द सिमिलर काइंड ऑफ इकोसिस्टम देयर. तो इसके बाद ही उसमें हम देख सकते हैं कि कुछ एनिमल जहां भी ऐसे डेवलप हो गए हैं एरियाज, तो थोड़ा एनिमल आना शुरू हुए. एनिमल जब आने लगते हैं तो फिर उसमें प्रीडेटर्स भी आना शुरू हो जाते हैं. तो एक धीरे धीरे एक इकोसिस्टम वहां पे डेवलप हो जाता है. कुछ हार्डली सम एरियाज फाउंड वेरी गुड. फिर देखिए जब इस तरह के फ्रेगमेंटेशन और ये हो रहे हैं तो इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ जा रहा है. अभी मध्य प्रदेश में एलिफेंट के केसेस बहुत ज्यादा सुनने को आ रहे हैं, जहां भी विलेजर्स को अटैक कर रहे हैं, विलेजेस में हैबिटेशंस में एंटर हो जा रहे हैं, उनका जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, और एनिमल भी अफेक्टेड हो रहे हैं. अभी ये राजस्थान का फोटो है, ये जो एरिया हो रहा है फ्रेगमेंट हो गया, वाटर रिसोर्सेज कम हो गए, तो वो वाटर की तलाश में इधर उधर घूमने चले जाते हैं. तो विलेज में गए तो इस तरह के इंसिडेंसेस हो जा रहे हैं. तो ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जा रहे हैं. ओवरऑल द एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, वो इंटेंसिफाई होता जा रहा है. आप देखिए यहाँ पे रेलवे लाइन जंगल के बीच से निकल रही है, एलिफेंट क्रॉस हो रहे हैं, और फाइनली देखिए कैजुअलिटी भी हो रही है. कुछ क्रॉस नहीं कर पाए तो उनका डेथ हो जा रहा है. तो इस तरह के जो इफेक्ट्स हैं, इम्पैक्ट्स हमको जो लैंड डाइवर्जन से जो इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, ये सारे इम्पैक्ट्स मिल रहे हैं. एंड जैसे मैंने बताया था कि इंडिया का गोल अपना जो है फॉरेस्ट ट्री कवर को इम्प्रूव करना है. तो एक अच्छा न्यूज है, achievement of Ministry of Environment, Forest, Climate Change in the year 2025. India announced forest cover, wildlife reserve and urban greenery. इन सब में काफी अच्छा रिकवर किया है. अचीविंग ग्लोबल रिकॉग्निशन इन द फॉरेस्ट गेन, जो हमने फॉरेस्ट गेन किया है, इम्प्रूवमेंट टू 9th ग्लोबली इन फॉरेस्ट एरिया. ये FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 2025 का रिपोर्ट है, इन 9th उस पे है. एंड वी हैव रिटेन 3rd पोजीशन वर्ल्ड वाइड एनुअल नेट फॉरेस्ट गेन. जो एनुअल नेट फॉरेस्ट गेन है उसमें 3rd पोजीशन है. ओवरऑल हमारा जो 9th पोजीशन है, दैट इज अचीवमेंट ऑफ इंडिया.
हालांकि अभी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जैसे प्लांटेशन करके आपने ग्रीन कवर बढ़ाया, लेकिन उस प्लांटेशन को इकोलॉजिकल भी हमको रिच करना है, ठीक है। तो आप फिगर में अगर ले लिया है तो उसका क्वालिटी, उसकी डेंसिटी, उसकी जो एक्चुअल हमारा जो इकोसिस्टम है उसको हमको मेंटेन करना है, उसको डेवलप करना है। फिर इंडिया में अभी ये लिस्ट है मैंने दिया हुआ है जो प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनका, जैसे हाई रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है, डिजिटल हाईवे इनिशिएटिव्स हैं, पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान है, एनएमडीसी, एनआईसीडीसी का है, स्मार्ट सिटी प्लान है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें भी काफी लैंड डाइवर्जन के केसेस हैं। अभी मतलब लैंड डाइवर्जन हमारा और होता जाना है, लेकिन हम ओवरऑल हमें क्या बैलेंस बनाते हुए काम करना है, मतलब इकोलॉजी, सोशल, कम्युनिटी एंड इकोनॉमी, तीनों के बीच में एक बैलेंस बनाकर, और हम हमारा डेवलपमेंट, वी कैन नॉट स्टॉप आवर डेवलपमेंट ना, तो वो करते हुए आगे बढ़ना है इसमें। अब जो आपको ये बताऊंगी प्रैक्टिकल वे क्या हो सकते हैं। अब आपको ओवरऑल हमें प्रोटेक्ट करना है फॉरेस्ट, तो जहां भी हम लोगों को चांस मिलता है रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, ऑल्दो गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल दैट, बट हम इंडिविजुअल बेसिस पे भी प्लांट ट्रीज को प्लांट कर सकते हैं। जो आपके घरों के आसपास कहीं भी बेयर लैंड्स है, छोटा सा भी पैच है, आप छोटा सा भी एरिया में अगर कुछ ट्रीज प्लांट कर सकते हैं तो दैट इज वेरी गुड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यू, तो योर साइड। बाय सर्टिफाइड प्रोडक्ट, मतलब हमको सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही खरीदने हैं जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं। फिर हमें रिड्यूस पेपर यूज, मतलब हम किस तरह से फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने में प्रैक्टिकल वे में हम किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। सपोर्ट कंजर्वेशन ग्रुप, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको सपोर्ट हम करें। प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड इकोसिस्टम एंड प्लांट ट्री ग्लोबली, हमको ये सब करना है। प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर को रोकना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जवाबदारी है। अगर बाय चांस कभी हमारे उसमें भी एक ऐसा केस आ जाता है कि हम कहीं से जा रहे हैं फॉरेस्ट में लगा हो, तो हम उसको एफर्ट कर सकते हैं, फॉरेस्ट मतलब कंसर्न को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि यहाँ यहाँ एरिया में फॉरेस्ट फायर है, आप उसको जाके कंट्रोल करें। इस तरह का हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। कंट्रोल कमर्शियल लॉगिंग, सिलेक्टिव कटिंग ही रखे, उससे क्या होता है कि ओल्डर जो इकोसिस्टम हमारा वैसे के वैसे रहेगा। सिलेक्टिव लॉगिंग करेंगे, अगर आप पूरा 100% कमर्शियल लॉगिंग करेंगे तो वी विल लॉस ऑल द थिंग। अब जो फॉरेस्ट के अंदर है देखिए कितनी सारी चीजें, तो सॉइल है, सॉइल में सॉइल का माइक्रो जो फ्लोरा माइक्रोफोना कितना इंपॉर्टेंट होता है, सॉइल को बिल्ड करने में उसकी हेल्प करता है। तो अगर आपने कमर्शियली कट कर दिया तो पूरा वहां का फ्लोरा फोना माइक्रोफ्लोरा वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसलिए हम सिलेक्टिव कटिंग करेंगे तो एटलीस्ट उस एरिया का जो मतलब इकोसिस्टम है वो हम उसको प्रिजर्व रख सकते हैं। इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो लोग उस सराउंडिंग एरियाज में रह रहे हैं वही सब, आप जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो उस समय दूर हैं, लेकिन वो तो साइट में मतलब रह रहे हैं, उनको एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस होनी चाहिए। तो वो अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में उसका सस्टेनेबल केयर करेंगे। फिर यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स, अभी जैसे अभी देखिए आजकल सोलर एनर्जी, बायोगैस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये सारे आ गए हैं, तो हम इन सबको यूज कर सकते हैं और फ्यूल फायरवुड कंजप्शन को कम कर सकते हैं। फिर प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, स्टॉप इलीगल पोचिंग, लैंड क्लियरिंग टू कीप एनिमल एंड प्लांट पॉपुलेशन सेफ। फिर एक लास्ट पॉइंट है एजुकेट अदर्स, टीच चिल्ड्रन एंड कम्युनिटीज, आपके आसपास जो भी लोग हैं उनको आप टीच करिए। हेल्दी फॉरेस्ट स्टॉप क्लाइमेट चेंज एंड क्लीन आवर एयर, मतलब फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस को समझाइए कि फॉरेस्ट क्या काम करता है। ये सारी चीजें हमको एक्सप्लेन करनी है, और ये सब हमारा प्रैक्टिकल रोल इन सब चीजों में हो सकता है। वी कैन कंट्रीब्यूट फॉर आवर फॉरेस्ट
conservation, forest protection. So thank you so much. This is all from my side, and questions are invited. Students, this is the opportunity. कोई भी अगर आप लोगों को क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक या फिर आपको जो अलॉटेड टॉपिक है. Okay, Aradhya, you have 9 questions. Let's give it a go. Ma'am, my first question is what is NOC and who is the appraisal committee? NOC, non-objection certificate. And ma'am, who is the appraisal? फॉरेस्ट क्लियरेंस लेते हैं ना, फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रोसेस में जाते हैं, तो EIA के बाद आपने ये करके दिया, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन डू दैट वर्क, वो जब कर देती है उसके बाद यू सबमिट दैट रिपोर्ट, और उसके बाद आप उससे NOC लेते हैं कि फर्दर आगे हम बढ़ सकते हैं. तो जब EIA इज ओके तो NOC लेके फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर आप क्लियरेंस के लिए फिर एप्लीकेशन देते हैं. तो ये प्रोसीजर है, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर. Ma'am, may I proceed with my second question? आई एम नॉट एबल टू हियर यू. Yes, Aradhya, you can proceed with your second Ma'am, question. what is project proponent? प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट, इट्स अ यूजर एजेंसी. मान लीजिए माइनिंग है, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, हैव यू हर्ड? नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, SECL है, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड. मींस जो माइनिंग अथॉरिटीज है ना, जो उस लैंड को लीज में लेना चाहती है ना, जैसे जो फॉरेस्ट लैंड है उसको लीज पे गवर्नमेंट उसको जो डाइवर्ट करती है वो लीज पे करती है. लीज का पीरियड कितना होता है? इट मे बी, इट डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रोजेक्ट. इट मे बी फ्रॉम 10 years to 90 years, इतना हो सकता है. तो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट वही कहलाता है जो यूजर एजेंसी जिसको हम बोलते हैं, मतलब जो प्रोडक्ट को बाद में यूज करेगा. गॉट माय पॉइंट? Yes, ma'am. Ma'am, what is EIA? EIA is Environmental Impact Assessment. इसका मतलब क्या होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट? जैसे कोई जो लैंड है वो डाइवर्ट होने के लिए प्रपोज है, ठीक है, अभी प्रपोजल है, अभी हुई नहीं डाइवर्ट ना, प्रपोजल के लिए. तो उसमें जो स्टडी होता है, एनवायरमेंट स्टडी क्या होता है कि इसमें प्रिडिक्शन देते हैं, जो EIA कंडक्टिंग अथॉरिटी रहती है वो उसमें प्रिडिक्ट करती है कि यहाँ पे ये इफेक्ट हो सकता है. जैसे आप मैंने बताया था कि RET स्पीशीज मान लीजिए कोई है वहाँ, तो यू हैव टू रिकमेंड कि दिस RET स्पीशीज आर गोइंग टू बी यूज्ड फ्रॉम दिस एरिया. तो उसके लिए आप कंजर्वेशन प्लान भी बनाते हैं कि यहाँ से अगर जा रहा है, ये देखिए मैंने बोला ना 3 चीजों के बीच में हमें बैलेंस बनाना है, एनवायरमेंट और सोसाइटी और इकोनॉमी, तीनों का बैलेंस बनाते हुए करना है. तो अगर एक स्पीशीज एक जगह से खत्म हो जा रही है, वो थ्रेटेंड या एंडेमिक नहीं है, अगर एंडेमिक मतलब उस एरिया के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो आप उसका कंजर्वेशन प्लान बना के दूसरी जगह उस स्पीशीज को प्रिजर्व कर सकते हो. ठीक है? Ma'am, can you please explain the point mandate rigorous ecological cost benefit analysis before project approval? देखिए आप जो हमारा ये फॉरेस्ट एरिया है कुछ सर्विसेज देता है कि नहीं देता है? Yes. क्या सर्विसेज देता है? ऑक्सीजन दे रहा है, रिक्रिएशनल सर्विसेज दे रहा है. तो जो आजकल इकोसिस्टम सर्विसेज वैल्यूएशन हो रहा है ना, And what? इकोसिस्टम सर्विसेज वैल्यूएशन मतलब आपको क्या वैल्यू दे रहा है, कितना ऑक्सीजन दे रहा है, कितना वाटर दे रहा है, व्हाट एवर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय दैट एरिया, वो एरिया आपको क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसका एक एस्टिमेशन होता है. ये बिग सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो इसके हैं वो ये काम करते हैं. कितना कार्बन सिंक है, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इसमें, तो वो सारा करके वो वैल्यू निकालता है. और वो जो वैल्यू है मीन्स जो नेट वैल्यू है वो प्रोपोनेंट को मतलब यूजर एजेंसी को पे करनी पड़ती है along with compensatory afforestation cost. जो कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन प्रोग्राम है उसकी लैंड कौन देगा? यूजर एजेंसी, जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट रहेगा वो देगा.
उसकी कॉस्ट भी देगा, लैंड भी देगा, प्लस जो नेट वैल्यू आपके इकोसिस्टम सर्विसेज की आ रही है, भाई हम तो वो खत्म कर दे रहे हैं ना, इतना रिच एरिया था, हमने जो सर्विसेज वो दे रहा था, ऑक्सीजन दे रहा था, वो खत्म हो गई, राइट? Yes, ma'am. वो और भी एक एग्जांपल है, जो वाटर मिल रहा था, बहुत ओवरऑल कैलकुलेट होता है वो बिफोर मतलब कमिटमेंट, उसको उनको लैंड डाइवर्ट करने के पहले, तो जो कॉस्ट आता है वो भी यूजर एजेंसी को क्लियर करना पड़ता है। क्लियर हुआ बेटा? Yes, ma'am. Ma'am, my next question is, ma'am, what is the meaning of viable natural environment? कौन सा Viable natural environment, ma'am. वाइबल? Viable natural environment. वाइबल मीन्स लाइव, है ना, लाइव। And ma'am, what is the meaning of watershed health? विच हेल्थ? Watershed health. वाटरशेड ये जैसे जब रेन्स होता है ना, तो एक कोई एरिया है उसमें वाटरशेड्स एरियाज बनते हैं, है ना, वाटरशेड एरियाज बनते हैं, वो वाटरशेड उस एरिया की वाटरशेड हेल्थ बताते हैं। Ma'am, my next question is, ma'am, what is the meaning and difference between interior and edge habitat? देखिए, एक बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, बड़ा फॉरेस्ट पैच है ना, विदाउट उसमें कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ, तो बड़ा फॉरेस्ट पैच है। तो जो सेंट्रल मतलब जो कोर एरिया है, दैट इज कॉल्ड इंटीरियर, और जो एजेस पे है, और जो बफर एरिया, बफर मतलब दूसरे चीजों का इन्फ्लुएंस वहां हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड बफर एरिया। तो जो हमारे जितने भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रहते हैं ना, टाइगर रिजर्व में आपने सुना होगा कोर एरिया, बफर एरिया। कौन सा टाइगर रिजर्व आपने विजिट किया है अभी? नहीं? चलिए, अब मेरे से जब मीटिंग होगी तो आई सपोर्ट यू एंड मेरे साथ आप विजिट करिए, ठीक है? तो जो सेंट्रल पार्ट मतलब कोर एरिया, ठीक है, इंटीरियर एरिया इज इक्वल टू कोर एरिया, जहां पर बाहर का इन्फ्लुएंस बहुत नेग्लिजिबल है, जीरो है, बाहर की चीजों का इन्फ्लुएंस नहीं हो पाता है। और जो बफर एरिया, एज एरिया होता है, उसमें जो सराउंडिंग एरिया है, मतलब फॉरेस्ट तो वहां खत्म हो गया, फॉरेस्ट के बाद हैबिटेशन ही होगा और भी चीजें होगी, उनका जो इन्फ्लुएंस उस एरिया में होता है, दैट इज कॉल्ड बफर और आइदर एज एरिया, ठीक है? Ma'am, my next question is, what should happen if a project is economically important but cause significant ecological damage? कहाँ पे लिखा हुआ था, किस स्लाइड में है ये? Ma'am, this is a question that arose in my head. फिर से रिपीट करो बेटा। What should happen if a project is economically important but cause significant ecological damage? हाँ, मतलब इकोलॉजिकली डैमेज और इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट ना, Yes, ma'am. मतलब उससे गेन आपको बहुत होना है, लेकिन It is damaging the environment. इकोलॉजिकल लॉस बहुत ज्यादा है। Yes, ma'am. तो फिर वही यहाँ पे क्या काम करता है, आपका जो 3 फैक्टर है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मैं बात बार बार करती हूँ, नेचर, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, तीनों का बैलेंस बना के, इसमें एक बहुत सारी स्टडीज होती है और इनमें कैलकुलेट किया जाता है कि इतना हम डैमेज कर रहे हैं, इतना हम लॉस कर रहे हैं, इतना हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, और इतना कम्युनिटी, हमारी सोसाइटी को इतना बेनिफिट हो रहा है। तो तीनों में क्या है, अगर बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल लॉस है तो वो बैलेंस नहीं है, फिर हम उसको नहीं करेंगे। और अगर हम एक बैलेंस में कर पा रहे हैं, तभी हम उसको आगे बढ़ेंगे, उस प्रोजेक्ट को आगे करेंगे। So, ma'am, if that project is not balanced, the project get cancelled. हाँ, वही बोला ना, EIA जो स्टडी होती है ना, इसमें हम लोग उसको डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं, उसमें वे करते हैं, मतलब एक्स अमाउंट ऑफ डैमेज टू एनवायरमेंट, एक्स अमाउंट ऑफ गेन टू द सोसाइटी, एक्स अमाउंट ऑफ गेन टू आवर इकोनॉमी। तो तीनों में अगर वो आया तो वाइबल है, अगर प्रोजेक्ट वाइबल है तो आगे जाएगा, नहीं है वाइबल तो नहीं जाएगा, ठीक है? And my last question is, if development is necessary, how do we ensure that the cost of development is not paid by forest, biodiversity and local communities?
क्या क्या फिर से रिपीट करूं? लोकल कम्युनिटी क्या? मुझे इसकी सेंस समझ में नहीं है. वर्ड्स तो आपके सुनाई दिए. Ma'am, I am just writing my question. Please wait a second. Till then, if any other students have any sort of questions in regards to today's topic or conservation of flora, can raise their hands. Yes, Soumya, you may proceed with your question. Yes, ma'am. I would like to ask that you told us about the animal movements. So, what measures are taken or we can take to prevent the casualties of the animals? During the casualty of the animal. Yes, Ma'am, to prevent the casualty of the animals. मेंटर सर बिल्कुल जी जी ऑडिबल. मैम, उसका क्वेश्चन इस पॉइंट पे मेजरली दैट एनिमल्स का जो फ्री मूवमेंट हो रहा है फॉरेस्ट में, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट अंडर पासेस और ओवर ब्रिजेस है अवेलेबल, बट स्टिल कैजुअलिटीज हो रही है. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऐसे क्या नेसेसरी स्टेप्स उठा रही है, या फिर क्या और तरीके से उसको रोकने के लिए किसी भी तरह की वो हिम्मत दिखाई जा रही है? कुछ जगहों पर फेंसिंग भी, हाईवे में कुछ फेंसिंग भी कर रहे हैं, फेंसिंग भी लगा देते हैं, लेकिन हर जगह पॉसिबल नहीं है ना. काफी लंबा एरिया है तो फेंसिंग पॉसिबल नहीं है, और फेंसिंग के कारण भी थोड़ा एनिमल की मूवमेंट स्ट्रिक्ट होती है. तो कभी क्या है, जैसे ओवर ब्रिजेस बनाए हैं या अंडर पासेस बनाए, बट एनिमल की मूड है उसको नहीं जाना वहां से, उसको वो मूवमेंट फॉलो नहीं करना, तो फिर रोड से भी क्रॉस कर जाता है, तो उस समय कैजुअलिटी होती है. तो कैजुअलिटी हो जाती है तो फिर यही है, फिर उन जगहों पर अगर पॉसिबल है फेंसिंग करना, तो फेंसिंग एक प्रपोजल होता है. I hope Soumya that answers your question. Ma'am, Aradhya's Yes. final question is on record. If I'm audible, her question was, if development is necessary, then how do we ensure that cost of development is not paid by forest biodiversity and local communities? अगर डेवलपमेंट इतना जरूरी है तो फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी और लोकल कम्युनिटीज उसका हर्जाना ना भरे, इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो वही तो मैं इसी बात को बताया ना कि हम तीनों को आपस में देखते हैं ना, तीनों जो कंपोनेंट्स है उनका आपस में क्या परसेंटेज है, मतलब आपका जो बैलेंस है, बैलेंस इकोलॉजिकल बैलेंस क्या हो रहा है कम्युनिटी का, इकोनॉमी का एंड हमारे एनवायरमेंट का. तो अगर बहुत ज्यादा डैमेज हो रहा है एनवायरमेंट को, तो विल नॉट गो फॉर दिस प्रोजेक्ट. कम्युनिटी को भी सेटिस्फाइड होना है, आपकी इकोनॉमी को भी सेटिस्फाइड होना है, आपकी डेवलपमेंट को, इकोनॉमी बोले तो डेवलपमेंट को भी आपको, आपकी नीड है. कैन यू लिव विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? नो, रह सकते हो तो वो भी तो जरूरी है. तो जो चीजें हमारे लिए जरूरी है तो उसको हम मेजर करते हैं थ्रू डिफरेंट मैट्रिक्स, है ना. जो जब EIA हम स्टडीज होते हैं तो उसके डिफरेंट मैट्रिक्स को लेके इसका कितना प्रपोर्शन है, ये कितना प्रपोर्शन है, ये कितना प्रपोर्शन है. अगर तीनों में बैलेंस बन रहा है, एनवायरमेंटल डैमेज कम हो रहा है और प्रॉपर हमको इकोनॉमी सपोर्ट हो रहा है, कम्युनिटी सेटिस्फाइड है, इन सब चीज, इसीलिए तो इतने सारे प्रोविजंस बनाए गए ना, इतने सारे लीगल फ्रेमवर्क्स तैयार किए गए हैं. कम्युनिटीज के लिए भी कितने सारे लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है एंड फॉरेस्ट एक्ट राइट है, इस तरह के बहुत सारे लीगल प्रोविजंस हैं. तो सभी का बैलेंस बनाते हुए ही हमको इसलिए वो डेवलपमेंट को क्या बोला जाता है, सस्टेनेबल. व्हाटएवर वी हैव टू सस्टेन इट. उसको सस्टेन करते हुए आगे बढ़ना है, हमको उसको खत्म करके नहीं जाना है ना भाई. हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी तो हमको बचाना है ना, नॉट एक ही जनरेशन, हंड्रेड्स इयर्स ऑफ नेक्स्ट कमिंग जनरेशंस के लिए व्हाटएवर रिसोर्सेज वी हैव टू कंजर्व देम. तो उनको कंजर्व करते हुए लेकिन साथ में डेवलपमेंट भी तो करना है आपको. हमारा इतना पॉपुलेशन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, आप सबको ये चीज मालूम ही होगा. तो इतने बड़ी पॉपुलेशन को लेते हुए कितने चीजें हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. तो इसलिए जो लैंड डाइवर्जन के केसेस हैं डेवलपमेंट के कारण ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ में प्रोविजंस क्या बना है कि यू हैव टू
do the compensatory afforestation. अब compensatory afforestation हो तो रहा है, लेकिन क्या वो जनरली इक्वल इम्प्रूवमेंट से फॉलो हो रहा है? तो जैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो रहा है, तो हमको उसको कैसे स्ट्रेंथन करना है? तो दैट इज द सब्जेक्ट फॉर फर्दर रिसर्च ऑल्सो, एंड फर्दर एम्फेसिस मस्ट बी गिवन टू द रिप्लेसमेंट. हम इन इफिशिएंट रिप्लेसमेंट क्यों कर रहे हैं? वो रिप्लेसमेंट जो हम कर रहे हैं हमारी इतना रिच डाइवर्स लैंड के लिए, तो वो रिप्लेसमेंट हमारा इफिशिएंट होना चाहिए. तो ये सब इसका जिस्ट है. Yes, Soumya, you may proceed with your another question. Ma'am, as you told us about various factors about the projects being approved, so if a project is already approved and then we realize that some factors of the project are causing harm to the environment, can it be modified later? Yeah, there is always conditions for modification. अगर यूजर एजेंसी को लगता है कि नहीं ज्यादा डैमेज हो रहा है, तो वो रिपोर्ट कर सकती है. जैसे जब इनका प्रोजेक्ट का रिव्यू होता है, तो बड़ी बड़ी कमेटियां इसको अप्रेजल कमेटीज रिव्यू करती हैं. तो उस समय अगर कोई पॉइंट सामने आया, या EIA रिपोर्ट जब सबमिट की गई उस समय कोई पॉइंट सामने आया कि ये तो यहाँ पे ये हैबिटेट है, यूनिक हैबिटेट है, ये इसको सरवाइव करना चाहिए, इसका लॉस नहीं होना चाहिए, तो आइदर यू कैन डू विद कंजर्वेशन प्लान एट डिफरेंट प्लेस, और अगर नहीं हो सकता, नहीं पॉसिबल है, तो यू हैव टू लीव दैट प्लेस. Any other questions, students? Thank you, ma'am, for patiently answering all the questions and for giving our delegates such a valuable opportunity to interact with you. I'm sure this session has given everyone a much deeper understanding of the challenges involved in balancing development along with forest conservation. And delegates will certainly be able to take these insights forward in their committee preparations. Now, delegates, country like India, which comes under the ambit of developing nations, development is inevitable. Loss of flora and fauna is unfortunate, but that responsibility lies upon us as well as the competent authorities, that they have to make some sort of policies like these. Compensatory afforestation are not just our responsibilities and duties, it should be our way of life. So, ma'am, thank you for this session. Now, delegates, let's give a big thank you to ma'am, Dr. Anjana Rajput, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Pratap, stop sharing कर दो. Yes, ma'am. I want all the delegates to stay in this meeting.